بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے ناولٹ کے ساتھ جس کا نام ہے محبت فاتح عالم اور اسے تحریر کیا ہے نبیہ نقوی نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ رباح کی آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات تھی۔ وہ اپنے باپ کی وجہ سے بے حد پریشان تھی۔ نشے کی بری لت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ نظر محمد شروع سے خراب نہ تھا، اسے برے دوستوں کی صحبت نے تباہ کر دیا تھا۔ راتوں کو دیر سے آتا، دفتر سے آئے دن نہ گئی، جس کے سبب ملازمت سے برطرف کر دیا گیا اور پھر جیسے روزگار ہی بھول گیا۔ جب شوہر کو بیوی کی کمائی کی عادت پڑ جائے تو پھر وہ اپنی ملازمت کے متعلق سوچنا چھوڑ دیتا ہے۔ نظر محمد کا بھی یہی حساب ہوا۔ سلطانہ پڑھی لکھی تھی، لہٰذا چند اچھی ٹیوشنز مل گئیں جس سے گھر کا دال دلیا چل رہا تھا۔ رباح نے بھی پرائیویٹ پڑھائی شروع کر دی۔ نظر محمد دن میں چارپائی توڑتا رہتا، رات کو باہر چل دیتا۔ منہ اندھیرے گھر آنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سلطانہ اسے دنیا کی اونچ نیچ سمجھاتی، اسے اچھے دن یاد کراتی تو کہتا، تو دیکھتی رہ، بس ایک ہی داؤ میں سارا ادھار چکا دوں گا۔ جوئے میں آج تک کسی کو بنتے نہیں دیکھا، یہ گھر پھونک ڈالتا ہے، چھوڑ اس کو، کوئی کام ڈھونڈ، بیٹی بیاہنی ہے۔ وہ دوبارہ کہتی، معلوم ہے، وہ تلخی سے جواب دیتا، شکر کرو ایک ہی بیٹی ہے، 2-4 ہوتی تو پتہ چلتا۔ اور پھر تکرار شروع ہو جاتی۔ جس روز لڑائی ہوتی اس رات تو وہ بالکل گھر نہیں آتا۔ ابا کہاں جاتے ہیں آخر؟ رباح متفکر ہوتی۔ اپنے نکمے بےہودہ دوستوں میں، اور کہاں جائے گا؟ تم سو جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ پچھلے گھر میں سنا ہے سایہ ہے۔ ابا آ جاتے ہیں تو اطمینان ہو جاتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، سلطانہ تلخی سے کہتی۔ آج بھی تکرار ہوئی تھی، لہٰذا وہ غائب تھا۔ انہیں معلوم ہے مجھے ڈر لگتا ہے، پھر بھی دیر سے آتے ہیں۔ رباح باپ سے ناراض تھی۔ آدھی رات کو وہ دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ ابا آ گئے۔ وہ ایک ہی جسٹ میں چارپائی سے کودی۔ لیٹی رہ، میں دیکھتی ہوں۔ سلطانہ کو شاید اونگ آ گئی تھی، ورنہ رات بھر میاں کے سدھرنے کی دعائیں کرتی تھی۔ کہاں مر گئی تھی، ٹھاٹ سے پڑی سوتی رہتی ہے۔ انتہائی غلیظ گالی دی گئی۔ کتنے برے ہیں ابا۔ رباح نے منہ تک چادر لے لی۔ چلو شکر ہے آ تو گئے، اب میں آرام سے سو جاؤں گی۔ اس نے اطمینان سے کروٹ لی۔ بیٹی جوان ہے، اب تو سدھر جاؤ، وہ تمہارا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اچھا، دماغ نہ کھاؤ، ابھی ہوش نہیں ہے کچھ۔ ادھیڑ عمر، کھچڑی بال، ملگجی سے کپڑے، چال میں لڑکھڑاہٹ، اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کہاں نصیب پھوٹے، اس مرد کو ذرا احساس نہیں۔ سلطانہ کڑ کے رہ گئی۔ وہ چارپائی پر اوندھا جا پڑا۔ سویرے نظر محمد کو ناشتے میں انڈا چاہیے تھا۔ پاپے اور چائے کا پیالہ دیوار پر دے مارا۔ خدا کا خوف کرو، پیالے کی کرچیاں اٹھاتے ہوئے سلطانہ سلگی۔ رباح چائے کے پیالے میں پاپے ڈبو ڈبو کر کھا رہی تھی۔ بالوں کی چھوٹی لٹیں حسین چہرے پر نثار ہو رہی تھی۔ ایسے خوبصورت نقش۔ نظر محمد نے اسے غور سے دیکھا۔ سلطانہ نے باپ کی نگاہ بیٹی پٹی کی دیکھی تو خوف سے لرز گئی۔ کتنا کھائے گی؟ چل دفان ہو کمرے میں۔ سلطانہ کی کرخت آواز پر وہ آدھا پاپا منہ میں دبا کر اندر بڑھ گئی۔ کیوں اندر بھیج دیا اسے برا لگا۔ باپ جوان بیٹیوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھا کرتے، اس نے رسان سے سمجھایا، مگر اندر سے جان نکلی جا رہی تھی۔ نظر محمد کے کرتوت اسے پتا تھے۔ آئی بڑی افلاطون، ویسے بگڑا تو تیرا بھی کچھ نہیں۔ فوراً بیوی پر نگاہ جمائی۔ حاکم نے لاکھوں کما لیے، اس کی بیوی بھی بڑی دھانسو، خبردار۔ وہ حلق کے بل چلائی، میرے میں ایسا سوچنا بھی مت۔ وہ کمینگی سے ہنسنے لگا۔ وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، پہلے اس جہنم کو تو بھر دے۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ مارا۔ ڈٹائی کی انتہا تھی۔ دن رات اسی کے لیے ہی تو آنکھیں پھوڑتی ہوں۔ اس نے احساس دلانے کی کوشش کی۔ کیوں پھوڑتی ہو؟ اتنی آنکھیں ہیں، ان میں کاجل ڈالا کرو، کتنے تمہارے قدموں میں گریں گے۔ وہ بے شرمی سے ہنسا۔ خدا سے ڈرو نظر محمد۔ سلطانہ لرز گئی تھی، اس کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ دن بھر غائب رہا اور سلطانہ خوف سے لرزتی رہی۔ امی ابو کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ماں کو لرزتے کانپتے دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ انسان کی ذہنیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ بری صحبت نے اسے کہیں کا نہ رکھا۔ میں کہیں نوکری کر لوں؟ اس نے اجازت طلب نظروں سے ماں کو دیکھا۔ اسے معلوم تھا باپ اچھے کھانوں کا شوقین ہے۔ دونوں ماں بیٹی کمانا شروع کریں گی تو باپ کی نت نئی فرمائشیں بآسانی پوری ہو سکیں گی۔ چپ کرو تم۔ سلطانہ ویسے ہی پریشان تھی، اس کی بات نے اسے مزید تپا دیا تو اسے ڈانٹ دیا۔ وہ سارا دن دہلتی رہی۔ اس کی سوچ کو میں کیسے بدلوں؟
रबाह भी उसे देखकर परेशान होती रही। बात सुनो मेरी। शाम को वो आया तो हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। सुल्ताना, मुझे माफ कर दो, बड़ा मजबूर हो गया हूँ। तुम्हें सिर्फ एक रोज के लिए करीम के पास जाना होगा। मैं जुए में हार गया हूँ। तुम कमीने इंसान, मेरी बोली लगा दी। गम और गुस्से से सुल्ताना की आवाज फट गई। तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी भर गई है। उसने दोनों हाथ दुआ के अंदाज में उठाकर कहा, खुदावंद ताला तो मुझे इस जहान से उठा ले। बेवा होने की दुआ मांगो। वो भी रो रहा था। ऐसे रो रहे हो जैसे बड़ी गैरत है। उसने नफरत से जमीन पर थूक दिया। तुम तैयार रहना, मैं रात को ले जाऊंगा, वरना वो हमारी बेटी को गुंडों से उठवा लेगा। वो ठिठक गई। नजर मोहम्मद मुंह छुपाकर चला गया। सुल्ताना के दिमाग में धमाके हो रहे थे। वो कोई भी इंतहाई कदम उठाने को तैयार थी। रबाह अलग दहल कर रह गई थी। बाप की आवाज उसके कानों ने भी सुनी थी। वो हवास बाख्ता थी। उठो जल्दी, इस जहन्नुम से निकल जाओ। सुल्ताना ने उसे पागलों की तरह घसीटा। इससे पहले तुम्हारा बाप आ जाए। अम्मी, मैं कहाँ जाऊं? रबाह खौफ से ढह गई। तुम घर के पिछले हिस्से में जहां कचरा पड़ा रहता है वहां जाकर छुप जाओ। सुबह आ जाना। उस कमीने इंसान ने मुझे बेच डाला है। शराबी, चरसी, जवारी, जमीर मर गया उसका। तो अम्मी, हम दोनों कहीं चलते हैं। तुम्हारा बाप आता ही होगा। खुदा के वास्ते रबाह, बहस ना कर, निकल जा। मगर वो हिचकिचाई। चली जा। सुल्ताना ने उसे घसीट कर दरवाजे से बाहर धकेल दिया। वो जैसे सोच समझ सब भूल चुकी थी। या अल्लाह, उसके पैरों तले से जमीन निकली जा रही थी। बड़े से दुपट्टे में लरसता कांपता वजूद लिए वो घर से बाहर आई। घर के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वहां अंधेरा था। अचानक कुत्ते की आवाज पर वो बुरी तरह भागी थी। बाप का साया ना काबिले भरोसा, और माँ का साया हमेशा के लिए छूट जाएगा। ये कैसा फैसला कर लिया अम्मी ने? अब्बा, बाप का ख्याल आते ही बदन में नफरत की लहर सी उठी थी। रात बढ़ती जा रही थी, मगर ट्रैफिक अभी रवां दवां था। शोर मचाती बस, धुआं उड़ाते रिक्शे। उसने चारों तरफ देखा। गाड़ियों का अज़्दहाम था। वो सोच में पड़ गई। रोड पार कर लूं, या किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊं, या उसी जहन्नुम में वापस पलट जाऊं। अम्मी ने जहर खा लिया होगा, और अब अब्बा क्या कर रहे होंगे? रात बढ़ती जा रही थी। उसका खौफ भी बढ़ रहा था। वो तो वैसे ही डरपोक थी। घबराहट में उसने करीब गुजरने वाली गाड़ी को हाथ दिया। दूसरे लफ्जों में अपनी शामत को खुदा आवाज दी। आप मेरी मदद कर सकते हैं? वो पिछली खिड़की पर थोड़ा झुकी। सेठ ने उसके चमकते हसीन चेहरे को ललचा कर देखा। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ाना चाही, मगर सेठ ने रोक दिया। ड्राइवर ने इंतहाई गुस्से से उस रोती धोती लड़की को देखा। आ जाओ, सेठ ने गाड़ी से झांक कर कहा। वो आ बैठी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो बदिकत बोली। सेठ की हविसनाक नजरें उस इंतहाई खौफजदा जारुकितार रोती लड़की पर गड़ गईं, जबकि ड्राइवर कहर आलूद नजरों से उसे घूर रहा था। मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई गाड़ी पोश एरिया में एक बंगले के पास रुकी। जदीद आराइश से सजा नहायत आलीशान घर, मगर वहां खामोशी का राज था। बैठो, वो डरी सहमी कुर्सी पर टिकी। सेठ उसके बराबर आ बैठा। चेहरे पर इंतहा की बेसब्री थी। मैं नहीं पूछूंगा किस हालात के तहत घर से निकली हो। मुझे खुश कर दो बस। ढेरों दौलत तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। सेठ ने उसका नाजुक हाथ पकड़ा। रबाह को उस शख्स की कमीनगी का एहसास जागा तो बिजली किसी तेजी से हाथ छुड़ाया। खुदा के वास्ते मुझे बचा लो, तड़प कर ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ दिए, जो पता नहीं कैसे अचानक वहां आ गया था। तुम खुद आई हो? ड्राइवर ने नफरत से कहा। सेठ खड़ा हुआ। उसे नजरअंदाज करके अपने सेठ के हुक्म का मुंतजिर हुआ। अल्लाह के वास्ते। सेठ के मजीद कुछ बोलने से पहले वो ड्राइवर के करीब आई। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें अपनी माँ का वास्ता, अगर तुम्हारी कोई बहन है तो प्लीज। वो कुछ इस अंदाज से गिड़गिड़ाई कि वो चौंक उठा। सेठ ने उठकर रबाह को अपनी जानिब घसीटा। उसी पल बगैर सोचे समझे अख्तर ने सेठ को एक झांपड़ रसीद किया। सेठ की कराह निकली। लड़खड़ा कर वो 2 कदम दूर हुआ। अगले ही लम्हे वो बिजली किसी तेजी से रबाह का हाथ पकड़कर गेट से बाहर था। अभी उसने गाड़ी गेट के अंदर ना की थी। उसे झट गाड़ी में बिठाया और हवा के दोष पर उड़ा दी। वो डरी सहमी मुसलसल आंसू बहा रही थी। उस रोड पर ट्रॉलर और ऊंचे ऊंचे सामान से लदे ट्रक रवां थे। गाड़ी किसी चूंटी की मानिंद लग रही थी। कहाँ जा रहे हो? खौफ से कांपती आवाज में पूछा। जहन्नुम में। वो गोया काट खाने को दौड़ा था। मैंने ये कदम क्यों उठाया? हम दोनों ही कहीं चली जाती, या फिर दोनों ही जहर खा लेती। अब ये ड्राइवर पता नहीं कहाँ ले जा रहा है।
غصے میں بھرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر جمائے اپنے انجام سے لاپرواہ وہ گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا۔ مجھے میری امی کے پاس لے چلو واپس، وہ منمنائی۔ واپس ہی جانا تھا تو بھاگی کیوں گھر سے؟ اس نے قہر برسایا۔ میں بھاگی نہیں ہوں، چیخ پڑی۔ اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اسی لمحے گاڑی اس کے قابو سے باہر ہوئی، ٹرک سے ٹکراتے ٹکراتے بچی اور سنبھلتے سنبھلتے بھی گاڑی ٹرک سے اتر گئی اور ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ اس نے خوف سے آنکھیں میچ لی۔ ٹائر بڑی زور سے چرچرائے تھے۔ ابو نے امی کو بیچ دیا۔ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، مجھے ان کے پاس لے چلو پلیز، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ رو رو کر التجا کرنے لگی۔ یہ سب پہلے سوچنا تھا، میری زندگی بھی اپنے ساتھ خوار کروا دی۔ سیٹھ بھلا کہاں چھوڑے گا مجھے؟ میں معافی مانگتی ہوں تم سے۔ ابو نے میری امی کو جوئے میں ہار دیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ ورنہ میرا باپ مجھے… میں سوچ بھی کہاں سکتی تھی کہ میرے سر کا سایہ، میری چھت، میرا باپ اتنا گھناؤنا ایک کام کرے گا۔ دہشت برا لہجہ دکھ کی چبن بھی لیے ہوئے تھا۔ اسی لیے مرد ذات سے نفرت ہونے لگی ہے۔ میں تمہاری جھوٹی کہانی پر یقین نہیں کر سکتا۔ کسی کی خاطر گھر سے بھاگی ہو؟ اس نے بے وفائی کر دی۔ ایک سنسناتا ہوا تازیانہ اس کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ وہ تڑپ اٹھی، پوری قوت سے اس کی گردن پر دونوں ہاتھ مارے۔ وہ بلبلا اٹھا، تمہارا دماغ خراب ہے؟ دفع ہو جاؤ، 1 منٹ کے اندر اندر نکلو گاڑی سے ورنہ تمہارا گلا دبا دوں گا۔ وہ خوفناک آواز سے دھاڑ اٹھا۔ وہ بیٹھی رہی۔ تم اترتی ہو یا دھکا دوں تمہیں؟ وہ گرایا۔ گلا دبا دو۔ وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ پتہ نہیں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا مگر وہ اسٹارٹ نہ ہوئی۔ کچھ فالٹ ہو گیا ہے۔ سیٹھ بھوکے کتے کی طرح ڈھونڈ رہا ہوگا۔ اس کے ہاتھ سے ترنوالا چھین لایا ہوں۔ اس نے پولیس کو بھی اطلاع کر دی ہوگی، یقیناً مجھ پر گاڑی چوری کا الزام لگا دیا ہوگا۔ ابھی کوئی پولیس موبائل ڈھونڈتی ہوئی آ جائے گی، اسے یہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ بڑبڑایا۔ وہ شہر سے کافی دور نکل آئے تھے۔ اس کا ذہن اپنے بچاؤ کی ترکیب لڑانے لگا۔ ڈیش بورڈ کھولا، گاڑی کی لائٹ جلائی۔ یہاں اچھی خاصی رقم ہوا کرتی تھی تاکہ اسے چھوٹے موٹے فالٹ یا گیس بھروانے کے لیے سیٹھ سے بار بار تقاضا نہ کرنا پڑے۔ اسے ماہانہ رقم مل جاتی تھی۔ وہ بڑی دیانتداری سے خرچ کرتا تھا۔ اس کی رہائش بھی سیٹھ کے گھر میں تھی۔ حقیقت میں اس کا تو کوئی خرچہ ہی نہ تھا، بس اپنی تعلیم پر خرچ کرتا۔ وہ اعلیٰ کردار کا پڑھا لکھا نوجوان تھا اور غیرت مند بھی۔ اس وقت اس مصیبت زدہ لڑکی کی مدد کر کے گویا اپنے مالک سے خیانت کر رہا تھا، حالانکہ اسے اس لڑکی سے اور اس کی کہانی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے یہ بھی احساس ہو گیا تھا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یوں ہی پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہلکی روشنی میں خوف زدہ، ڈری سہمی ہچکیاں لیتی وہ لڑکی اسے بڑی نڈھال سی لگی۔ اس کا حسن اسے سب سے زیادہ خوف دلا رہا تھا۔ رقم جیب میں ڈال کر درستی سے بولا، باہر نکلو، مجھے یہیں رہنے دو۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ گھر سے نکلی ہو بغیر سوچے سمجھے؟ مجھے کیا پتا تھا؟ میں جن حالات کا شکار تھی، میری امی نے مخاصی دہشت زدہ تھی۔ اسے شک کی نگاہ سے دیکھا تھا مگر اس کے چہرے پر خوف کے علاوہ کچھ نہ تھا، نہ ارادہ، نہ ہی کوئی رقم۔ بس یوں ہی گھر سے دھکیل دی گئی تھی۔ گھر سے باہر حوث پرستوں کی یلغار تھی۔ مدد کرنے والا بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے تو بہتر تھا گھر کے جہنم میں رہتی۔ اترو، سیٹھ کی گاڑی ہے۔ اب کہاں جانا ہوگا؟ لرزتی کانپتی آواز میں پوچھا۔ اللہ مالک ہے، میں نے تمہاری مدد کی حامی بھری ہے تو اب کروں گا بھی۔ میری ماں کا واسطہ دے دیا تم نے، یہ الگ بات کہ خود کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ وہ تمیز سے تو بولا مگر بیزاری کا احساس بھی دلا دیا۔ سیٹھ کے بڑے احسان ہیں مجھ پر۔ سیٹھ نے پرورش کی، تعلیم دلائی، مزید تعلیم کے لیے باہر جا رہا تھا۔ میرا ٹکٹ بھی آ چکا تھا، اگلے ہفتے میری روانگی تھی۔ اب یہ سب کچھ ممکن نہیں۔ میری مدد کرنے والا خود کتنا مجبور ہے۔ اس وقت مجھے سیٹھ کے چنگل سے نہ نکالتا تو ہو سکتا ہے میں بے عزت ہو کر اپنی جان دے دیتی۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا احسان تاحیات نہیں اتار سکتی۔ میرے بہت عزیز ہیں مگر باپ کی وجہ سے سب نے ناتا توڑ لیا۔ وہ تو روز بروز پستی میں گرتے جا رہے ہیں۔ امی تک کو داؤ پر لگا دیا۔ مجھے شدید نفرت ہو رہی ہے اپنے باپ سے۔ کوئی یوں اپنی عزتوں کو نیلام کرتا ہے؟ میری امی نے اب تک زہر کھا لیا ہوگا۔ اس وقت میں نے کچھ تو سوچا ہوتا۔ رو رو کر وہ بے حال ہو رہی تھی۔ بی بی خود کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ پولیس آ جائے۔ اس گاڑی کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے۔ وہ سمجھانے لگا مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر ایک سمت کو لڑک گئی۔ سنو بی بی، اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ اسی لمحے دور سے موبائل کی آواز سنائی دی۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا۔ بجلی کسی تیزی سے اس بے ہوش وجود کو بازوؤں میں سنبھالا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ اچھی مصیبت ہے، وہ بڑبڑایا۔ ڈھلوان راستہ،
बढ़ता हुआ अंधेरा, मोबाइल का सायरन, झाड़ियों की ओट में बेहोश लड़की को लटा दिया। अभी सीधा भी ना हुआ था कि झाड़ियों में सरसराहट की आवाज ने खौफ कर दिया। एक सांप इंतहाई करीब से गुजरा। उसने बरक रफ्तारी से उसे बाजुओं में यूं समेटा जैसे मताए हयात हो। घास फूस पर लिटाते हुए वो झिझक रहा था क्योंकि झाड़ियों से मुसलसल सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसे उठाकर चलना भी दुश्वार था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। किसी मुश्किल में न फंस जाऊं, इस लड़की की मदद जिंदगी भर का रोग न बन जाए। वो यूं ही बैठा रहा। मोबाइल की सायरन की आवाज खत्म हो चुकी थी। गाड़ी को चलाने की कोशिश करूं, वो उसी शशोपंज में था। छोड़ो, छोड़ो मुझे। अचानक वो जागी और दहशत ज़दा होकर बुरी तरह चीखी। सूरत हाल ऐसी थी कि वो गलत फहमी का शिकार हो गई। उसके चीखने पर घबराकर उसने फौरन बाजू खोल दिए। वो पूरी कुव्वत से पथरीली जमीन पर जा पड़ी और दर्द से बिलबिला उठी। पता नहीं ये मददगार क्या करना चाह रहा था। मजबूत बाजुओं के हिसार का तस्वुर आते ही वो लरजने लगी। तो इसलिए बचाया था मुझे। तुम सारे मर्द एक होते हो, खबरदार। इसकी वजह से वो पहले ही परेशान था। इल्जाम ने जैसे आग लगा दी। एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद कर दिया। मरो यहीं। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी अजाब में आ गई है और तुम। उंगली उसके चेहरे के सामने लहराई। पुलिस किसी भी पल मुझे तलाश करती यहां आ पहुंचेगी। इतने असर और रसूख वाला इंसान अपने मुजरिम को कैसे छोड़ेगा? मेरा ताबनाक मुस्तकबिल सिर्फ तुम्हारी वजह से खाक का ढेर बन गया। तुम बेहोश थी तो तुम्हें सांप के काटने से बचाया और तुम मुझी पर शक कर रही हो। वो कपड़े झाड़ कर उठा और कदम आगे बढ़ा दिए। बस जितनी मदद करनी थी कर दी। अब अपनी हिफाजत तुम खुद करो। वो सख्त भुन्ना गया था। जैसे ही वो एक तरफ को चला वो बुरी तरह घबरा गई। देखो प्लीज। वो खौफ से कांपने लगी। वो रुका। उसकी तरफ निगाह घुमाई। उसकी शफाफ रंगत मलगजे अंधेरे में चमक रही थी। थप्पड़ जनाटेदार था। फिर उसका मर्दाना हाथ। रुखसारों पर उंगलियों के निशान वाजिया थे। होंठ का किनारा भी सूज गया था। खौफ से बुरी तरह कांपती हुई मलतजी नजरों से उसे ही देख रही थी। उसका दिल पसीज गया। उसी पल उसके पांव पर किसी कीड़े ने काट लिया। उसने सिसकी भरी तो लपक कर उसके बाजू को हाथों से जकड़ लिया। चलो जल्दी करो, यहां से निकलना है। जहन पर सिर्फ उसकी मदद करने की धुन सवार हो गई। आगे क्या करना है सब भूल गया। ये यकीनन शरीफ इंसान है, उसने दिल में सोचा। वो तेज तेज कदमों से चल रहा था। उसका साथ देने के लिए उसे तकरीबन भागना पड़ रहा था। खतरा अभी तक सर पर मंडला रहा था। अंधेरे के सबब उसने दाएं बाएं की बजाय नाक की सीध इख्तियार की। सड़क पर पहुंचे तो दूर से एक बस आती नजर आई। अपने चेहरे को छुपा लो, मैं बस रोकता हूँ। वह उसकी बात पर ममनून सी हो गई। बड़े से दुपट्टे को सलीके से लपेट लिया। चेहरा भी तकरीबन छुपा लिया, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं। उसने इशारा किया। बस रुक गई। वो दोनों सवार हो गए। कहाँ जाना है? कंडक्टर की आवाज पर दोनों चौंक गए। हम मुसाफिर हैं, ऐसी जगह जाना है जहां रात बसर कर सकें, मजबूत लहजे में कहा। करीबी बस्ती में हमारा आखिरी स्टॉप है, हम भी उसी जगह ठहर जाएंगे, वो इत्मीनान से बोला। कंडक्टर को मतलूबा रकम अदा की। बस में चंद सवारियां और थीं, सब उनकी तरफ मतवज्जा थे। दोनों साथ साथ बैठे थे। रबाह ने गोरे गोरे हाथ दुपट्टे में छुपा लिए थे। दिल धड़क धड़क कर बेहाल था। माँ का ख्याल सता रहा था। ये अजनबी जाने कहाँ ले जाए, ये फिक्र तो थी, मगर इतना सुकून जरूर था कि किसी गलत हाथ नहीं लगी। बेटा, इस इलाके में पहली मर्तबा आए हो? बस में सवार एक बूढ़ी औरत ने पूछा। जी, अख्तर ने जवाब दिया। ये तुम्हारी बीवी है? वो जबरदस्ती खांसने लगा। उसे बात टालने का यही तरीका सूझा था। तुम और तुम्हारी बीवी मेरे सराय में ठहर जाना। गले पड़ने वाली बूढ़ी औरत गाहक फांस रही थी। ठीक है अम्मा, उसने सर हिलाया और मुतमईन हो गया। चलो, रात गुजारने का इंतजाम तो हो गया। बस ने सारे मुसाफिर उतार दिए। वो दोनों उस बूढ़ी औरत के साथ हो लिए। सराय क्या थी, एक छप्पड़ सा पड़ा था। गंदे गंदे मैले मैले बिस्तरों पर खराटे लेते लोग। वो बहुत डरी सहमी थी। ये जगह औरतों के रहने के काबिल न थी। सारे मर्द थे। तुम्हारी बीवी को अपने घर ले जाऊंगी, औरतें अंदर ही होती हैं। जाओ और खुद को नॉर्मल रखना, किसी को शक ना हो। उसने सरगोशी की। कैसे अजीब हालात हैं। अजनबी शनासा हो गया। उससे दूर रहने से खौफ आया। अंधेरे में छोड़ गया तो? मुझे छोड़कर नहीं जाना, रूहान सी आवाज में अंदेशे का इजहार किया। रात के अंधेरे में अगर पुलिस पकड़ कर ले गई तो कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बता देना पुलिस को अंदर मैं भी हूं। वो खौफ से उसके करीब हो गई। सुनिए मिस्टर। कांधे पर किसी ने अचानक थपकी दी।
وہ پلٹا اور بری طرح چونکا۔ سامنے پولیس والا کھڑا تھا۔ رباح کا سانس اٹک گیا۔ اشتر بھی ڈر رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکرا رہا تھا۔ تم سہیل یہاں کیسے؟ انداز میں شناسائی تھی۔ یہی سوال میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بس سے اترتے دیکھا تم کو۔ یہاں کس سے ملنے آئے ہو؟ کسی سے بھی نہیں۔ چلو پھر گھر چلو۔ اچڑتی نگاہ اس ڈری سہمی لڑکی پر ڈالی، پھر اشاروں میں اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ تمہیں دیکھ کر جان میں جان آئی۔ کیوں کوئی واردات کر کے نکلے ہو؟ سہیل نے کہا لگایا۔ پولیس والے ہو، تفتیشی طریقہ ہی اپناؤ گے؟ اس نے بھی ہنس کر بات اڑائی۔ تینوں اس کی جیپ میں سوار ہوئے۔ اسے اب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا، پھر بھی بے حد پریشان تھی۔ دل گھر میں اٹکا تھا۔ ماں جانے کس حال میں ہوگی؟ بھابھی کا کیا حال ہے؟ وہی پرانی عادت، بہت مارتی ہے۔ وہ ہنس دیا، بھاری ہنسی جیپ میں گونج گئی۔ چھوٹے سے ایک کوارٹر کے قریب جیپ رکی۔ ہارن کی آواز پر دروازہ کھلا۔ ارے انہیں کہاں سے پکڑ لائے؟ چھوٹے سے قد والی خاتون نے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا، پھر اس کے پیچھے آنے والی لڑکی کو دیکھا۔ آئیے۔ سہیل نے بڑی عزت سے پلٹ کر رباح کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر بیوی سے کہا، ذرا کھانے کا بندوبست کر لو۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھری اور کچن کی طرف جاتے جاتے ایک مشکوک نگاہ رباح پر ڈالی۔ بہت حسین ہے۔ اشتر ایسا ہے تو نہیں، مگر پھر یہ کون ہے؟ سہیل اسے باہر لے گیا۔ تب مختصراً اشتر نے رباح کے بارے میں اور اپنے اقدام کے متعلق بتایا۔ وہ اندر آئے تو وہ دبی دبی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ اپنا نام بتائیں، کچھ حالات وغیرہ بتائیں۔ مجھے بے حد شرم آ رہی ہے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے۔ وہ ہچکچائی مگر پھر اس کے زور دینے پر بڑی ہمت کر کے اپنی داستان غم سنا دی۔ اسی اثنا میں سہیل کی بیوی کھانا لے آئی۔ بی بی آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں، میں سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ یہ تو محفوظ ہو گئی، میرا کیا ہوگا؟ اشتر کو فوراً اپنی فکر نے آ گھیرا۔ تمہارے سیٹ کو تو میں 2 جھانپڑ اور مار دوں۔ فی الحال ڈٹ کر کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ صبح میں پتہ کرتا ہوں۔ میری امی کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، وہ تڑپ رہی تھی۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، سب بہتر ہوگا۔ اسے تسلی جھوٹی لگی۔ رات بھر بے چین رہی۔ اسے شام تک بڑی بے چینی تھی۔ سہیل کا انتظار تھا، کچھ معلوم ہوا؟ اسے فکر مند سا دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ فی الحال آپ کا گھر نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ اس سے نظریں چرا گیا، بہانے سے اشتر کو باہر لے گیا۔ یار وہاں تو کہانی عجیب ہو گئی۔ باپ نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کر لیا، ماں کسی کو بتائے بغیر گھر چھوڑ گئی۔ اب اسے کیا بتائیں؟ اور سیٹھ؟ اسے اپنی پڑی تھی، اسے تو میں نے خود دیکھا ہے، بھلا چنگا گاڑی میں بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ میں تو مارا گیا اور بے حد پریشان ہو گیا۔ کیا خبر قدرت نے کیا سوچا ہے؟ کسی بے سہارا کی مدد کی، اس کا اجر ملے گا، خاک ملے گا۔ اجر کے چکر میں ملازمت بھی گئی۔ گھر سے نکلنے سے پہلے سوچ تو لیتی۔ اسے رباح پر نئے سرے سے غصہ آیا، جس کی وجہ سے اسے ملازمت سے ہاتھ دھونے پڑے اور ملک سے باہر جانے کا موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ دونوں اخبارات کا جائزہ لے رہے تھے۔ سیٹھ نے کسی بھی اخبار میں کوئی خبر نہیں دی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ جا کر معافی مانگ لو، سہیل نے مشورہ دیا۔ اتنا بے غیرت نہیں، ملازمت گئی تو گئی، اب دیکھیں قسمت کیا کرتی ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر نگاہ جمائی۔ شکر ہے وہ زندہ بچ گیا، ورنہ قاتل کہلاتا۔ میرا ضمیر مجھے تاحیات بے چین کیے رکھتا۔ اسے کس طرح بتایا جائے؟ سہیل کو یہی فکر تھی۔ اس کا ذکر مت کرو۔ اسے رباح سے بے حد چیڑ ہو رہی تھی، اب وبال جان لگ رہی تھی۔ کوئی جان پہچان ہے جہاں اسے چھوڑا جائے؟ سہیل ابھی تک اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ایک آدھ دن کی بات ہوتی تو یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ پوری زندگی؟ ویسے خوبصورت بہت ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ اس کا حسن اشتر کو مصیبت لگ رہا تھا۔ اب اس کی عزت بچانی ہے تو کسی ایسی جگہ تو پہنچا دیں کہ باعزت رہے۔ کہاں پہنچا دیں؟ اس نے بیزاری اختیار کی۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ سہیل کو اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا۔ سہمی سہمی، خاموش، متورم آنکھیں، مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ اس کی امید دم توڑ رہی تھی۔ وہ دونوں بھی حوصلہ کھو رہے تھے۔ سہیل کی بیوی بھی خاموش تھی۔ وہ اس لڑکی کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ جلد از جلد اس گھر سے چلی جائے، مگر 2 دن گزر گئے، کہیں سے کوئی امید نہ بندی تھی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ اس نے صرف چائے پی، دوپٹہ احتیاط سے اپنے گرد لپیٹا۔ سروقد، نازک سی کانچ کی گڑیا جیسی وہ لڑکی وحشت زدہ اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے پناہ دی، میری مدد کی۔ ہلکی سی سسکی لی جو اشتر کے دل پر برچھی کی طرح لگی۔ کہاں جاؤ گی؟
बेचैनी से पूछा। सुहेल ने चौंक कर अख्तर को देखा। मैं बंदोबस्त कर रहा हूँ, चंद दिन इंतजार कर लो, सुहेल ने कहा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका बहुत एहसान है। थोड़ा एहसान और ले लो, अंदर चली जाओ कमरे में। सुहेल के अंदाज पर उसकी ढारस कतरे बंधी, मगर रोना आ गया। उसकी हालत देखकर सुहेल ने एक दो जगह फोन किए, फिर एकदम ही उसे याद आया, मिसेस नीलोफर ज़ीशान खानजादा को अपनी सास की निगहदाश्त के लिए किसी खातून की जरूरत थी। मुझे अभी ले चलिए, वो बेताबी से बोली। वहां किसी को अपनी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, अख्तर ने समझाया। उसने सर हिलाया। फैमिली अच्छी है, वहां कोई परेशानी नहीं होगी। सुहेल ने हिम्मत बंधाई। सुहेल उसी शाम उसे वहां ले गया। मिसेस खानजादा का घर काफी शानदार था। मिसेस खानजादा ने उसका तफसीली जायजा लिया। आपकी जान पहचान वाली है तो फिर बेहतर ही होगी, मगर गजब की हसीन है। जवाबन सुहेल खामोश रहा। इस बात पर क्या कहा जा सकता था। नीलोफर गोरी रंगत की दुबली पतली तराशीदा बालों वाली खातून थी। वो मिल ओनर की बेटी थी, मगर गरूर नाम को नहीं था। मियाँ सरकारी ओहदेदार थे। वो खुद भी कई रफाहे इदारे चला रही थी। मेरी सास को शिकायत का मौका मत देना। वो उसे अपनी सास के कमरे में ले आई। नीलोफर की हिदायत पर उसने धीमे से सर हिलाया। तनख्वाह अच्छी खासी थी। वो हैरत ज़दा रह गई। इतने सारे पैसे उसने कहाँ एक साथ देखे थे। अम्मा देखिए कितनी प्यारी लड़की है, ये आपके साथ रहेगी। अम्मा ने उसे नागवारी से देखा। अच्छी लड़की है, आपकी देखभाल करेगी। उन्होंने फिर उसे घूरा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का मौका ना दूं। उसने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्या नाम है? रबाह। अम्मा की आदत को समझ लोगी तो आसानी हो जाएगी। वो सर हिलाकर हिदायत सुन रही थी। दिल अपनी माँ में अटका था। दुनिया में रही कि नहीं, आह कैसी मजबूरी है, किससे मालूम करूं। अम्मा ये तन्हा है, माँ बाप नहीं है इसके। अम्मा को पता नहीं रबाह क्यों नहीं अच्छी लग रही थी। वो उसे मुसलसल नागवारी से घूर रही थी। तुम यूँ करो, सबसे पहले नहाकर कपड़े बदल लो। उन्होंने उसे अपनी सास की घूरती निगाहों से बचाया और साथ ही कॉटन का एक सूट उसे पकड़ा दिया। अपने आप को जरा ढांप कर रखना, थोड़ी सी हिदायत की। अम्मा को एडजस्ट करने में कुछ वक्त लगेगा, मगर तुम परेशान ना हो। नीलोफर ने उसे तसल्ली दी। नहाकर उसने लिबास तब्दील किया। अभी बाल संवार रही थी कि नीलोफर आ गई। अम्मा के साथ वाला कमरा तुम्हारा है, फ्रिज में फल वगैरह मौजूद होते हैं, तुम बेतकल्लुफी से इस्तेमाल कर सकती हो। उन्होंने फराख दिली दिखाई। हाँ बहुत अच्छी हैं बाजी। इतनी मोहब्बत पाकर वो हिचकियों से रो दी। सुहेल भाई ने जरूरतमंद कहकर बात खत्म कर दी थी। आपने भरोसा कर लिया, मगर मैं आपसे कुछ छुपा नहीं सकती। मेरी असल कहानी ये है बाजी कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। नीलोफर कुर्सी पर बैठी थी। वो वहीं पाँव के पास बैठ गई और अपनी दास्तान गम सुना डाली। नीलोफर गुंग थी। अख्तर ने असल कहानी बताने से मना किया था, मगर उसने कह सुनाई। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मेरा और कोई ठिकाना नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। मुझसे जो हो सका करूंगी। पढ़ी लिखी हो, कोई अच्छी जॉब हुई तो ज़रूर बताऊंगी। मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। उसने मिन्नत की। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। नीलोफर ने फराख दिली दिखाई। अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे साथ कोई ज्यादती हो जाती तो मुझे शर्मिंदगी होती। नीलोफर आजकल ज्यादा मसरूफ हो गई थी। एनजीओ के तहत बेसहारा खवातीन के लिए रिहाइश का इंतजाम और उनको हुनर सिखाकर काम दिलाने की धुन सवार थी। रबाह भी बेसहारा है, मगर उसे अपने घर में रखकर वो उसकी तरफ से मुतमईन हो गई थी कि उसे सहारा मिल चुका है। वो भी उनकी बहुत ममनून थी। खुदा का शुक्र भी अदा करती, मगर माँ के बारे में जानने को बेचैन थी। उनका ख्याल आते ही दिल कट कर रह जाता। नीलोफर का घर भी दूर दराज इलाके में था। वो रास्तों से नावाकिफ थी, और न ही एक दफा घर जाकर जरूर मालूम करती। नीलोफर से भी बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। वो अपने बाल बना रही थी, दराज रेशमी घने बाल जो हाथों में नहीं आते थे। माँ कितने प्यार से उन बालों को संवारती थी, माशाल्लाह कहकर चूम लेती। वो सोचों में गुम थी। रबाह प्लीज जरा इधर आना, नीलोफर ने उसे पकारा। वो बहुत जल्दी में थी। वो कैचर बालों में अटकाकर तेजी से बाहर लटकी। प्लीज जरा ये उठा लो, बाहर गाड़ी तक पहुंचाना है। थैला काफी वजनी था, जिसे उठाने में उसे काफी दुश्वारी हो रही थी। लैंड क्रूजर खड़ी थी, चंद मर्द और खवातीन भी मौजूद थीं। उसने किसी की जानिब नहीं देखा। हाय कैसे गजब के बाल हैं, कितनी ब्यूटीफुल है। उसे देखते ही कुछ मिलीजुली आवाजें आईं। ऐसे बेतकल्लुफाना तबसरे सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई और घबराहट में सीढ़ियों पर तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और थैले समेत नीचे फर्श पर जा कड़ी। सर गाड़ी से जा टकराया। आंखों के आगे सितारे नाच गए। शर्मिंदगी के एहसास से नजरें झुक गईं। किसी ने उसे लपक कर उठा लिया था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा तो हैरान रह गई। अख्तर, हमेशा से मेरा मददगार,
शुक्रिया। उसे देखकर वो बौखला गई। पेशानी पर गोमड़ सा उभर आया था। चोट तो नहीं आई? गर्दन में कैमरा डाले एक शख्स उसके सरापे को दिलचस्पी से देख रहा था। मिसेस जिशान, एक तस्वीर ले सकता हूँ इनकी? उसने नीलोफर की तरफ इजाजत तलब नजरों से देखा, फिर उसका जायजा लिया। वो फिरोजी रंग का हल्की कढ़ाई वाला सूट पहने हुए थी। वो नीलोफर की उतरन थी। बालों में सुर्ख कंघी फंसी थी। जरूर लो भाई। नीलोफर ने फराख दिली से इजाजत दी। उससे पूछा ही नहीं, उसकी 2-3 तस्वीरें ले ली। अख्तर ने इंतहाई नागवारी से तस्वीर खींचने वाले और तस्वीर खिंचवाने वाली को देखा। क्यों, वो खुद भी ना समझ सका। वो तेजी से अंदर चली गई। ये इतनी खूबसूरत लड़की कौन है? अम्मा की देखभाल के लिए रखा है। शर्म करो, इतनी खूबसूरत लड़की से सास के काम करवाओगी? मिसेस हामिद हैरान थी। जरूरतमंद है। अख्तर ने स्टीयरिंग को मजबूती से थाम रखा था। रबाह, इस लड़की की वजह से उसे अपने सुनहरी मुस्तकबिल से हाथ धोने पड़े, वरना इस वक्त अमेरिका में होता। इधर वो ये सब सोच रहा था और उधर वो अंदर उसके लिए दुआ गो थी। अल्लाह उसे किसी परेशानी में मुब्तला न करे। रबाह, जरा ड्राइंग रूम में आना। नीलोफर की पुकार सुनाई दी। वो अम्मा की चोटी बांधकर फारिग हुई थी। शानदार ड्राइंग रूम में 2 साहब बैठे थे। उनमें एक वो भी था जिसने उस दिन रबाह की तस्वीर खींची थी। वो ठिठक गई। ये जुनेद अफंदी हैं, मशहूर एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक। तुम्हें ऐड के लिए मुंतखब किया है। नीलोफर ने तारुफ के साथ ही इतला दी। फोटोजेनिक फेस है तुम्हारा। तारीफी नजरें उस पर डालने के बाद नीलोफर की तरफ मुतवज्जा हुए। मिसेस जिशान, आपने मुझे बहुत हसीन चेहरे दिए, मगर ये तो कमाल हो गया। जुनेद अफंदी ने सताइश भरे जुमले बोले और फिर गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। मुझे ये काम नहीं करना। वो घबरा गई। अफंदी की निगाहें यूं महसूस हो रही थी जैसे जिस्म के आर पार देख रहा हो। वो इस वक्त गुलाबी जदीद तराश का सूट पहने थी, जिसका गला थोड़ा खुला था। नीलोफर ने फराख दिली से उसे अपने कई जोड़े उसे बख्श दिए थे। जुनैद के इस तरह देखने पर उसने दुपट्टा लपेट कर ओढ़ लिया। शोहरत खुद चलकर तुम्हारे पास आई है बेवकूफ, कहाँ से कहाँ जा पहुंचोगी? नीलोफर का ये बोलना उसे कुछ नागवार गुजरा। अच्छे घर की लड़कियां मेरे तवस्सुत से जाती हैं। वालदैन को मुझ पर भरोसा है, कोई गलत काम ना होगा, बल्कि तुम्हारी हिफाजत होगी। वो उसे चमकार रही थी। मुआशरे में मेरी इज्जत है, तुम मुआहदे पर दस्तखत करो। कुछ बाउंड होना पड़ेगा। जब तक मेरी इजाजत नहीं होगी किसी और के लिए काम नहीं कर सकोगी। जुनैद अफंदी ने फौरन कारोबारी अंदाज इख्तियार कर लिया। इसकी फिक्र मत करो जुनैद, रबाह की बजाय नीलोफर ने जवाब दिया। लाने ले जाने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी। पिक एंड ड्रॉप तो मैं भी कर सकता हूँ, जुनैद ने ऑफर की। करीब ही तो रहता हूँ। बहुत लकी हो, नीलोफर हंस दी। वो हैरान परेशान थी। उसे जो रकम मिल रही थी वो तो ख्वाब में भी ना सोची थी। उसका पहला कमर्शियल टीवी पर चल पड़ा। न्यून साइन, बिलबोर्ड्स, रिसालों में, अखबारों में सब जगह धूम मच गई। अख्तर ने अखबार में बड़ा सा इश्तिहार देखा। उसका जी चाहा सर फोड़ डाले अपना। झुंझुलाकर अखबार फाड़ डाला। मुझे फकीर बनाकर खुद मजे उड़ाएगी, वो तिल मिलाता रहा। वो टीवी के करीब पोंछा लगा रही थी। टीवी पर नजर पड़ी तो चकरा के रह गई। घनेरे बालों के साथ वो हसीन चेहरा पल भर के लिए स्क्रीन पर नमूदार हुआ। शैम्पू का इश्तिहार था। रबाह, बमुश्किल अपने सुन होते वजूद को उठाया। वो दिल थामे बेआवाज रो रही थी। या अल्लाह, पता नहीं किन हाथों में है। नजर मोहम्मद, अल्लाह तुझे कभी ना बख्शेगा। जाने मेरी बच्ची जाने किस हाल में होगी। वो कलेजा थामे तड़प तड़प कर रो रही थी। मैंने उसे खो दिया। शुक्र है जिंदा है। खुदावंद उसकी इज्जत को महफूज रखना। सुल्ताना ने बड़ी हिम्मत करके खुद को उठाया। रहने को आसरा मिल गया था। बेगम साहिबा के बड़े बेटे ने चैनल बदल लिया। सुल्ताना बेचैन हो गई। बेटा, वही इश्तिहार लगा दो। आज पहली मर्तबा फरमाइश की। रबाह को देखने का जी चाह रहा था। एक लम्हे बाद ही ड्रामे में वक्फा आ गया। नए ऐड बार बार दिखाए जाने लगे। रबाह ही है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अखबार में बड़ा सा इश्तिहार छपा था। बेगम साहिबा, अखबार ले लूं? उनका इशारा पाते ही बेताबी से अखबार को सीने से लगा लिया। रबाह, मेरी बच्ची, मैं तुझे याद रही कि नहीं? अपने हाथों से अपनी बच्ची गवा दी। वो आहो बका करती और अब ताला से उससे मिलने की दुआ करती रही। उसे काफी रकम मिली थी। सबसे पहले मोबाइल लिया। बच्चों ने इस्तेमाल करना भी सिखा दिया। कुछ नए कपड़े भी बनाए थे और घर में भी सबके लिए कुछ ना कुछ खरीदा था। माँ का ख्याल आया तो दिल भर आया। वो उनका हाल जानने के लिए बेचैन थी। नीलोफर से दबी दबी जुबान से अपने घर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था, मगर वो टाल गई। उसने शॉपिंग के दौरान अपने लिए स्कार्फ और अबाया खरीदा था। इस इश्तिहार के बाद उसे और ऑफर हुई थी।
मगर मुआहिदे के मुताबिक अभी वो सिर्फ जुनैद अफंदी के साथ काम करने की पाबंद थी। जुनैद के देखने का अंदाज उसके रगोपे में सनसनी फैला देता। उसके हुस्न को चार चांद लग गए थे। जुनैद अफंदी का वालिहानापन भी बढ़ता जा रहा था। उसके अंदाज उसे बेहद परेशान कर रहे थे। जी चाहता था कहीं छुप जाए। उसके मुतालबे रोज बरोज बढ़ते जा रहे थे। बाजी बहुत से लोग ऑफर कर रहे हैं। रैंप पर मॉडलिंग की ऑफर आई थी। एक रोज हिम्मत करके नीलोफर से कह दिया, तुम ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाना चाहती हो? नहीं, मुझे अफंदी से खौफ आता है। सच बात कह ही दी। तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जाहिर है कुछ तो हक बनता है उसका भी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। नीलोफर उसके बचपने पर मुस्कुरा दी। स्कार्फ से चेहरा अच्छी तरह छुपाया, रिक्शा रोक कर आने जाने का किराया तय किया और सवार हो गई। दिल बेहद धड़क रहा था। हाथ पांव सनसना रहे थे। अच्छी बुरी दोनों खबरें मिल सकती थीं। उसकी बेताबी हद से बढ़ गई थी। जब थोड़ी सूझबूझ आ गई तो एक दिन उसने मौके से फायदा उठा लिया। घर जैसे जैसे करीब आ रहा था, दिल की बेताबी बढ़ती जा रही थी। तंग गलियां शुरू हो गईं। यही रोक दो भाई। कांपते हाथ धड़कते दिल के साथ कुंडी बजाई। 2 बार, 3 बार बजाने के बाद कोई बड़बड़ाता हुआ कुंडी खोल रहा था। अजनबी चेहरा। यहाँ नजर मोहम्मद और उसकी बीवी सुल्ताना रहते थे। शिद्दत जज्बात से उसकी आवाज कांप रही थी। यहाँ तो मैं रहता हूँ, तुम कौन? फौरन ही सवाल दागा। वो कहाँ गए? उसका सवाल नजरअंदाज कर गई। नजर मोहम्मद ने सुना है खुदकुशी कर ली। बीवी कहीं मुंह छुपाकर रुपोश हो गई। दरअसल उनकी बेटी भाग गई थी अपने आशिक के साथ। आह, वो लड़खड़ाई तो ये कहानी बन गई। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। लड़खड़ाते कदमों से वो दोबारा रिक्शे में बैठ गई। रो रो कर बुरा हाल था। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी माँ, कहाँ ढूंढूं। तड़पते बिलकते रात गुजर रही थी। मेरी बच्ची, तेरा पता ठिकाना किससे पूछूं? सुल्ताना बहुत बेकरार थी। अपने आवाज काबू में रखना चाहिए थे मुझे। उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। उसे बेहद पशेमानी थी। नजर मोहम्मद के जहर पीते ही यूं महसूस हो रहा था जैसे छत मुझ पर गिर जाएगी। तेरी गुमशुदगी पर तरह तरह के सवाल उठते। किस किस का जवाब देती? मुंह छुपाकर तुझे ढूंढने निकली थी, पर तू जाने कहाँ चली गई थी मेरी बच्ची? तेरी माँ बेकसूर है। वो अखबार को सीने से भींचे तड़प रही थी। मेरी मासूम बच्ची, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाना। उसकी तस्वीर को बेकरारी से चूम रही थी। वो बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छूने लगी। जुनैद अफंदी ने प्रपोजल भेजा है। नीलोफर ने धमाका किया। नहीं बाजी, मुझे अपनी माँ को तलाश करना है। मैं ये फील्ड छोड़ दूंगी। तरक्की के रास्ते खुलते जा रहे हैं। कैसे छोड़ दोगी? बहुत दौलत कमा ली है, मुझे ज्यादा की तमन्ना नहीं है। वो फैसला कर चुकी थी। दौलत तुम्हारे पास खुद चल कर आ रही है। नाशुक्रापन मत करो। उन्होंने झाड़ा। जुनैद अफंदी से शादी नहीं कर सकती, कभी नहीं। उसे झुरझुरी आ गई। उसके मुतालिक सब कुछ जान चुकी थी। वो सिर्फ अख्तर को अपने दिल के आसपास मंडलाते देखती थी। सिर्फ उसी के साथ, मामूली ड्राइवर को जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। मेरी इज्जत बचाने वाला, तहफ्फुज देने वाला। उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची। वही मेरे जज्बों की इब्तदा है, वही इंतहा है, मगर जाने कहाँ है। गाड़ी में बैठे हर ड्राइवर पर उसकी निगाह होती। शायद वो हो। उस रोज वो किसका ड्राइवर था? चाहते हुए भी नीलोफर से पूछ ना सकी। वो जब भी शॉपिंग पर जाती, अबाया पहन कर जाती। इस तरह लोगों की नजरों से ओझल हो जाती थी। उस वक्त भी अबाया पहने हुए थी। चंद रेडीमेड सूट खरीदे और सैंडलों वाले कॉर्नर पर आ गई। मम्मा, मुझे 2 शूज लेने हैं। एक मोटी सी बच्ची ठुनक रही थी। हाँ जान, तुम 3 ले लो। इसी तरह की उसकी मोटी मम्मा भी सदके वारी हुई। उसी लम्हे उनका मोबाइल बजा। ओफो, इसे बड़ी बेचैनी हो रही है। नंबर देखकर बड़बड़ाई। बटन दबाकर मोबाइल कौन से लगाया। तुम परेशान ना हो, साहब से मेरी बात हो गई है। किसी दोस्त के साथ घर चले जाएंगे। तुम हमारे साथ रहोगे और यहाँ आकर शूज वाले कॉर्नर से हमारे पैकेट उठाकर गाड़ी में रखो। जिसको हिदायत दे रही थी। थोड़ी देर बाद वो चला आया। अश्तर, वो बेआवाज चिल्लाई। वो 4-5 पैकेट उठाकर इधर उधर देखे बिना चलता। वो बेकरारी से उसके पीछे लपकी। वो काफी आगे तक चला गया था। लोगों का हजूम था। वो तेजी से उसके पीछे भागती कई लोगों से टकराई। अश्तर, उसके बराबर पहुंचकर चिल्लाई। अश्तर प्लीज रुको, मैं रबाह। रुक जाओ, उसने अनसुनी कर दी। वो बाले जान, वो बड़बड़ाया। कदम और तेज कर दिए। वो सामने आ गई तो उसे रुकना पड़ा। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा एड्रेस चाहिए। उसने एक नजर उसे देखा। सामान के शापर्स जल्दी जल्दी ढूंढे और खुद को गाड़ी में मुकैयद कर लिया। उसकी बेइतनाई पर वो सिसक कर रो पड़ी। शीशा बजाने लगी। कैसी लाचारो मारूफ लग रही थी।
मुल्क की मशहूर व मारूफ मॉडल है, अब इसे मुझसे क्या गर्ज। वो हैरान था, मगर उस पर बेतहाशा गुस्सा भी आ रहा था। क्या प्रॉब्लम है? दांत पीसते शीशा नीचे किया। मैं तुम्हें कब से तलाश कर रही हूँ, मेरी बात तो सुन लो प्लीज। वो मिन्नत कर रही थी। बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से तरबतर थीं, पूरी की पूरी लरज रही थी। अश्तर के मिलने की खुशी, मगर उसकी बेमुरवती इंतहा पर थी। क्या मसला है? अब ये जॉब भी छुड़वानी है क्या? मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए। तुमने इतने एहसान किए, अब तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो मोहतरमा। मैं एक मामूली ड्राइवर हूँ, सर्वेंट क्वार्टर में रहता हूँ। आप हजारों में खेलने वाली, वो तंजिया बोला। तब भी तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। इस पर कोई असर नहीं हुआ। एक से एक अमीर मिल जाएगा, बल्कि मिल भी गया होगा। और एक क्या, अश्तर खुदा के वास्ते, वो तड़प उठी। उसके दोनों हाथ अभी तक जुड़े थे। तमाशा ना बनाओ प्लीज, लोग देख रहे हैं। बेगम साहिबा भी आती होंगी, तुम जाओ। उसने स्टेयरिंग पर हाथ रखे। मेरी बात सुन लो, मैं मर जाऊंगी। मर जाओ। वो बेइंतहा सफाक हो रहा था। वो सुन होकर रह गई। उसने सोचा भी न था कि ये इतना कठोर हो सकता है। वो आंसू पहुंचती पलट गई। इसे मुझसे क्या काम हो सकता है? व्यू मिरर से उसे जाते हुए देखा। वो सिसकती रिक्शे में बैठ रही थी। इसने गाड़ी नहीं खरीदी। ड्राइवर चाहिए होगा उसे, यानी मैं ड्राइवर का ड्राइवर रहूं। इतनी तालीम के बावजूद ढंग की मुलाजमत नहीं मिलती। वो दिल बर्दाश्ता था। आखिर क्यों मुझसे मिलना चाहती थी? उसकी सुई फिर वहीं अटकी। क्या करूं, मिलूं कि ना मिलूं? वो तजब्जब का शिकार हुआ। बिलाखिर उसकी सिसकियां, आंसुओं में तरबतर आंखें उसके दिल के आसपास नरम गोशा बनाती रहीं। उसने उससे मिलने का फैसला कर लिया। और दोनों पार्क के निस्बतन एक तन्हा गोशे में आ बैठे थे, मगर उसके मिजाज में एक तनाव था। क्या काम है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जल्दी बताओ। तुम मेरे सारे काम संभालो। उसकी खुशी काबिले दीद थी। तुम्हारा मुलाजिम बन जाऊं? तीखे लहजे में सवाल दागा। नहीं, मुहाफिज, वो हकलाई। मतलब सिक्योरिटी गार्ड, वो तिल मिलाया। उसकी इज्जत बचाते हुए अपना मुस्तकबिल खाक कर चुका था। उसे फिर याद आया, उससे भी बढ़कर उसका अंदाज हया आमेज था, मगर वो उसके अंदाज पहचान नहीं रहा था, या जान करके नजरअंदाज कर रहा था। साफ साफ बात करो, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। वो कतई मुतासिर ना हुआ। मुझे दुनिया के किसी मर्द पर भरोसा नहीं सिवाय तुम्हारे। हाँ, वो तो मैं हूं, गधा। लहजे में कोई फर्क ना आया था। तुम काम बताओ, मेरे पास वक्त कम है। थोड़ा सा नकाब सिरकाए वो उसके हवासों पर छा रही थी। मोती से दांतों की कितार बार बार मुस्कुराहट से नुमायां हो रही थी। शफक की सुर्खी रुखसारों पर लिए हाथों की नाजुक उंगलियां बाहम एक दूसरे में फंसाए वो बड़ी मुश्किल से बोल रही थी। मैं तुम्हारी वजह से इस मुकाम पर हूं, अब बस करो, यही कहने के लिए बुलाया है। उसने बात काट दी। तेवरी के बल दुरुस्त ही नहीं हो रहे थे। वो सब कुछ कहना चाहती थी, मगर हयात दामनगीर थी। वो क्यों नहीं समझ रहा? कितनी तनख्वाह दोगी? उसने एकदम पैंतरा बदला। सारी की सारी। वो चौंका। अंदाजा है क्या कह रही हो? दिमाग दुरुस्त रखो, मैं इस कमाश का नहीं हूं। जाने कौन कौन लोग इस फहरिस्त में हैं। उसका लहजा मजीद तुर्श हुआ। मेरी तौहीन मत करो, कोई भी फहरिस्त में नहीं, क्यों इतना शक कर रहे हो? उसे भी गुस्सा आ गया। सात आंसू टिप टिप करने लगे। वापस चलो, मेरी बात का जवाब तो दिया नहीं। क्या मुसीबत है? इस नौकरी से भी निकलवाओगी तुम? मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? वो रूहानसी हो गई। वो परेशान हो गई, उसे खुलकर कैसे बताए। प्रपोजल की तादाद बढ़ती जा रही थी और दिल लगी करने वाले भी जमा हो रहे थे। वो खुद को बचाते बचाते परेशान हो गई थी, और ये दर्जा अख्तर के अलावा किसी को देने पर तैयार न थी। उसे इस बात की परवाह न थी कि वो एक ड्राइवर है। उसकी शराफत ने किसी और से मुतासिर होने ना दिया। अख्तर, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वो शर्म से मरी जा रही थी, फिर भी कह ही दिया। वो हैरान रह गया। पागल हो गई हो क्या? लोग क्या कहेंगे? मुझे किसी की परवाह नहीं। बेख्तियार आंसू बह निकले। मुझे सबकी नजरों से दूर ले जाओ। तुम बहुत बुलंदी पर हो, मैं एक ड्राइवर। वो किसी तरह कायल ना हो रहा था। मैंने कहा ना, मुझे किसी बात की परवाह नहीं। मैं तुम्हारे साथ हर किस्म के हालात में रह सकती हूँ। तुम मुझे कितना जानती हो? 1000 साल से भी ज्यादा। तुम मेरे मददगार हो, मेरे मुहाफिज हो। वो हैरान रह गया। उस वक्त मेरी जगह कोई भी होता ऐसे ही मदद करता। तुम खुद जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो पूरे वसूख से बोली। तुम जज्बात में बह रही हो। प्लीज बिला वजह की तावीलें मत दो। किसी मुनासिब वक्त बाजी के घर आ जाओ। वो बेचैन थी। तुम जो सोच रही हो मुमकिन नहीं। इतनी बड़ी मॉडल एक
ड्राइवर के साथ शादी नामुमकिन। उसने नफी में सर हिलाया। हम किराए का फ्लैट या कोई छोटा सा घर ले लेंगे। उसके इनकार को नजरअंदाज करके उसने मुस्तकबिल का मंसूबा बनाया। मैं किराए का घर या फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ठीक है, हम सर्वेंट क्वार्टर ही में। तुम किस मट्टी की बनी हो? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। मोहब्बत की मट्टी से। वो अपने दिल की कैफियत से आगाह कर रही थी। इतना पैसा कमाने के बाद मुझ में क्या नजर आ गया? रुपए, पैसे, शोहरत ने मुझे मेरी औकात से हटने नहीं दिया। मैं जज्बाती फैसला नहीं कर रही, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। कितनी बार कहूँ? वो उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाह रही थी, मगर वो यकीन करने को तैयार न था। अजीब मुश्किल का शिकार था। ये लड़की दिल के नेहा खानों में घुसती चली जा रही थी, मगर वो एक होशमंद इंसान था। हमारे दरमियान बहुत फासले हैं, उसने समझाया। नहीं है फासले, वो मानने को तैयार नहीं थी। मेरा शुमार आम मुलाजमों में होता है, उसने फिर समझाया, हालांकि दिल उसके साथ के लिए मचल रहा था। कितनी बार कहूं अश्तर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिच होकर रो पड़ी। सोच लो, अभी वक्त है। सर्वेंट क्वार्टर, चाय, पापे का नाश्ता। उसके मोबाइल में अपना नंबर फीड करते हुए मुस्कुराकर बोला। रबाह ने बेख्तियार सुकून का सांस भरा। तुम्हारा दिमाग खराब है? एक ड्राइवर से शादी करोगी? मुल्क की मशहूर व मारूफ मॉडल और उस शख्स के अलावा मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगी। उसने उनकी बात काटी थी। कौन सी फिल्मी कहानी बनाना चाहती हो? वो बुरी तरह तिल मिला गई। तुम्हारी सोच झोंपड़ी वाली ही रही। इतनी बुलंदी पर जाने के बाद कूड़े में गिरना चाहती हो? ये मेरी जाती जिंदगी है। उसने उन्हें जताया। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कोई काम नहीं देगा, भूखों मरोगी। उसने डराया। मुझे रूखी सूखी खाने की आदत है। उसके पास हर बात का जवाब था। उस ड्राइवर की मोहब्बत ने तुम्हें बहुत निडर बना दिया है। नीलोफर हैरान थी। एक बार फिर सोच लो, बहुत जग हसाई होगी। सोच लिया, वो दो टोक लहजे में बोली। अखबार में शाया खबर रबाह ने पढ़ी। कनपट्टियां सुलग गईं। जी चाहा सबको शूट कर दे, मगर सिर्फ पेचो ताप खाकर रह गई। बाजी, ये खबर। अखबार नीलोफर के सामने पटका। चेहरा गुस्से के मारे लाल भभूका हो रहा था। नीलोफर ने उसके तेवर देखे और लापरवाही से शाने उचकाए। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। मैंने तो सिर्फ आपको बताया था। भाई क्या करती, तुम्हारे कुछ रिश्ते आए थे, मुझे उन लोगों को इनकार करने की माकूल वजह बतानी पड़ी। कह दिया किसी और को पसंद करती है। मामूली ड्राइवर कहना जरूरी था। रो देने को थी। हाँ, बहुत जरूरी था। इश्क अंधा होता है। अब शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। अब भी वक्त है। उस ड्राइवर को भगा दो। उनका अंदाज तमस्खराना था। वो मेरा मोहसिन है, उसने मुझे तहफ्फुज दिया था। ठीक है, तो इनाम में कुछ रकम दे दो। शोहर बनाने की क्या तुक है? उन्होंने मशवरे से नवाजा। इनाम ही तो दे रही हूं। नीलोफर ने नासमझी से उसे देखा। वो खामोशी से उठकर चल दी। मशहूर मारूफ मॉडल रबाह का एक मामूली ड्राइवर से मुआशका। चटपटी खबर अखबार में शाया हो गई। साथ ही रबाह की तस्वीर थी। सुल्ताना ने दिल पकड़ लिया। ये क्या हो गया रबाह तुझे? रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। चकराई चकराई काम कर रही थी। किससे इसका पता पूछूं? खुदाया मेरी मदद करके इसे रोक सकूं। पता नहीं कैसा इंसान हो। यकीनन लालची होगा। इसे कोई काबिल इंसान नहीं मिला। मैं इस तक कैसे पहुंचूं? दोनों माँ बेटी बेखबर थीं। उनके दरमियान सिर्फ एक दीवार का फासला था। नीलोफर का मकान और सिकंदर खान का मकान आगे पीछे गलियों में था। शूटिंग से थक कर आई थी। लोगों की तरह तरह के सवालों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ भी परेशानी थी। यहाँ मस्जिद कैसे रह सकती है? उनके तेवर भी बिगड़ गए थे, इसीलिए वो किसी को अश्तर से मिलाना नहीं चाहती थी। शादी भी खामोशी से करना चाहती थी। काश माँ मिल जाए। खुदावंद कोई तो हो। अभी गुनूदगी ही में थी। मोबाइल बज उठा। अश्तर था। हेलो, तुमने अखबार में खबर शाया करा दी? वो नाराज था। मैंने नहीं। फिर सारी तफसील उसे बताई। अश्तर, बाजी के घर रहना मुश्किल हो रहा है। मुझे बहुत जल्द ये घर तब्दील करना है। कोई फ्लैट या घर किराए पर। ओके, मैं करता हूँ बंदोबस्त, तुम परेशान ना हो। वो मुतमईन होकर सो गई। जिंदगी की आसाइशों की आदत हो गई है तुम्हें। अब वो ड्राइवर क्या देगा तुमको? जुनेद आफंदी के साथ वो लंच पर मदऊ थी। इस मौजू को ख़त्म कीजिए। वो इस पर बात नहीं करना चाहती थी। कैसे ख़त्म करूं? तुम मेरी ख्वाहिश हो, समझी? उसके लहजे में रौब के साथ प्यार भी था। सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुआ करती। उसे मुकाबला करना खूब आ गया था। ज़बरदस्ती पूरी कर ली जाती हैं। वो भी जिद पर आ गया था। अफंदी साहब प्लीज़, मैंने इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया तो गिरा भी सकता हूँ। आप धमकी दे रहे हैं। खबरदार कर रहा हूँ। इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो इज्जतदार ड्राइवर तुम्हें अपना ले। गरीबों को इज्जत बड़ी प्यारी होती है। कैसी बातें कर रहे हैं? अमीरों को इज्जत प्यारी नहीं होती। अमीर तो होता ही इज्जतदार है।
ایک غریب نوکرانی کو عروج پر پہنچا دیا۔ اس نے پھر جتایا، مہربانی ہے آپ کی، میں تمہیں کام نہیں دوں گا، مزید کہیں اور کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خباثت پر اتر آیا تھا۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ یہ آخری ایڈ ہوگا۔ جنید افندی نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے یہ بھی نہیں کرنا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ رقم؟ کون سی؟ جو تم پر خرچ ہوتی رہی ہے۔ لعنت بھیجتی ہوں اس رقم پر، ایک ایک پائی ادا کر دوں گی۔ وہ شدید غصہ ہوئی۔ ڈرائیور پر لعنت بھیجو اور چلو میرے گھر، بہت شاندار طریقے سے تم سے شادی کروں گا۔ اسے غصے میں دیکھا تو فوراً چاپلوسی اختیار کی، مگر اس پر اثر نہ ہوا۔ سنی انسنی کر کے جانے کے ارادے سے قدم بڑھائے۔ تمہارے عاشق کو تو میں چٹکی سے مسل دوں گا، جان عزیز ہے اس کی۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ سلگ اٹھا۔ رقابت کی آگ نے اسے پاگل کر دیا۔ یہ دھمکی سن کر اسے رکنا پڑا۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ وہ ذرا پیچھے کو ہوئی۔ میرے بہت سے جاننے والے ہیں جو میری ناپسندیدہ شخصیت کو دنیا میں زیادہ دیر تک نہیں رہنے دیتے۔ وہ گرایا۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اشتر، خدا کے واسطے کبھی مجھ سے نہ ملنا، وہ مار ڈالے گا تمہیں۔ وہ بری طرح سے سکھ اٹھی۔ گھر آتے ہی اس نے اشتر کو فون کیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اشتر، افندی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو تم اس سے شادی کر لو گی؟ وہ ناراض ہوا۔ زہر کھا لوں گی۔ وہ رو رہی تھی۔ فلمی جملے مت بولو۔ وہ بھی تک ناراض تھا۔ میں صحیح کہہ رہی ہوں، بس تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ اپنا فیصلہ سنا کر اس نے موبائل آف کر دیا۔ وہ کافی دیر تک تڑپتی سی سکتی رہی۔ کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کیا کرے۔ اشتر کے بغیر تو میں مر جاؤں گی، اللہ میری مدد کر۔ دوسری طرف موبائل تھامے اشتر حیران پریشان کھڑا تھا۔ اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ افندی نے آؤٹ ڈور شوٹنگ کے لیے جو وین ڈرائیور رکھا وہ اشتر تھا۔ ربا نہیں جانتی تھی کہ اشتر نے جان بوجھ کر افندی کے پاس نوکری کی یا افندی نے اسے اوقات یاد دلانے کے لیے اشتر کو ڈرائیور رکھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ اشتر کے سامنے ہی ربا سے اپنے التفات کا مظاہرہ کر ڈالتا۔ اتنے میں اشتر کی کنپٹیاں سلگ جاتی اور ربا زمین میں گڑ جاتی۔ ربا اشتر سے بات نہ کرتی، وہ بھی بظاہر اپنے کام سے کام رکھتا۔ یار بڑے خوبصورت ہو، ایٹیٹیوڈ بھی ہے، ایڈ کرو گے؟ نہیں سر، اس نے کوڑا جواب دیا۔ ارے کیوں بھائی، ہینڈسم ہو، بہت جلد ترقی کرو گے۔ وہ آج بڑی فیاضی کے موڈ میں تھا۔ ربا اس کے پہلو میں بیٹھی پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ صاحب یہ گانے بھی گاتا ہے، بڑا سریلا ہے۔ الیکٹریشین حمید بولا۔ کر لیجئے، اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ اس کی مسلسل خاموشی پر ربا نے آہستگی سے کہا۔ اشتر نے تب بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھا، مگر افندی زور سے ہنس پڑا۔ بھائی اب تو ڈن، ہماری جان نے کہہ دیا، سمجھ لو پتھر پر لکیر ہو گیا۔ ربا یوں خوش ہو گئی گویا رہائی کی شاید پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہو۔ جب ٹیلنٹ ہے اور موقع بھی مل رہا ہے تو فائدہ اٹھاؤ، ہم بیٹھے ہیں نا، آگے تک پہنچا دیں گے۔ افندی بڑی موج میں آیا ہوا تھا۔ اشتر نے اب بھی کچھ نہ کہا، گاڑی سٹارٹ کر دی۔ قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا پہلا ہی اشتہار مقبول ہو گیا۔ آفرز کی لائن لگ گئی۔ ٹی وی پروڈیوسرز نے ڈرامے کی آفر کر دی۔ وہ اچانک ہی بہت مصروف ہو گیا۔ جب موقع ملتا افندی کے پاس آ جاتا۔ اب ہم دوست ہیں تو میرے ڈرائیور نہیں رہے، لیکن آپ مجھے ہمیشہ تابعدار پائیں گے، وہ اوپری دل سے کہتا۔ اس دن وہ افندی سے ملنے آفس آیا تو افندی نہیں تھا۔ ربا اسی وقت کوئی کمرشل کر کے آئی تھی۔ اسے دیکھ کر رو پڑی۔ اشتر مجھے کہیں لے جاؤ، افندی کے ساتھ محبت کا ڈرامہ کرتے میں تھک گئی ہوں۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ اس نے تسلی دی۔ وہ بھی جلد از جلد اس سے چھٹکارا چاہتا تھا، ورنہ نظروں کے سامنے ربا کسی اور کی ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکے گا، دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ ربا کو رہائش کی تلاش تھی۔ اس نے اشتر سے مکان ڈھونڈنے کا کہہ دیا تھا۔ اب اس میں تنہا رہنے کی ہمت آ گئی تھی۔ اسے اشتر کے مضبوط سہارے کا آسرا تھا۔ رات کو جب موقع ملتا اشتر اسے فون کرتا۔ وہ ڈھیروں باتیں کرتے، مستقبل کے منصوبے بناتے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ اشتر ہی نے اسے بتایا کوئی بوڑھے میاں بیوی اپنا ایک پورشن کرائے پر دینا چاہتے ہیں۔ اسے ایڈریس سمجھا دیا۔ اب اسے راستوں کی پہچان ہو گئی تھی۔ عبایا پہن کر نقاب کر کے مطلوبہ مکان پر پہنچ گئی۔ جی فرمائیے۔ بوڑھے ایاز علی نے اینک کے موٹے موٹے شیشوں کے پیچھے سے اس کی شخصیت کا جائزہ لیا۔ ادھیڑ عمر صالحہ بیگم بھی قریب آ گئیں۔ ساڑی زیب تن کیے، کھچڑی بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے وہ ایک باوقار نفیس سی خاتون لگ رہی تھی۔ مجھے کرائے پر پورشن چاہیے، اس نے مدعا بیان کیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ اس نے مختصراً اپنے بارے میں بتایا۔ انہیں اس کے کام پر تھوڑا سا اعتراض ہوا، مگر اس نے یقین دلایا کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ وہ دونوں میاں بیوی تھوڑی سی پس و پیش کے بعد مان گئے۔
चलो ये मसला तो हल हुआ। वो खुश हुई बहुत। उसे 1 हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए। इस दौरान दोनों मियाँ बीवी के वो खदशात जो रबाह की फील्ड के हवाले से थे दूर हो गए। खुद रबाह भी एतबार व बेतबारी की फिजा में मोलक रहने के बाद मुतमईन हो गई थी। वो दोनों मियाँ बीवी बेजरर से मुखलिस लोग थे। वो उन्हें अपनी सारी कहानी सुना चुकी थी। वो दोनों उसकी आप बीती सुनकर आप दीदा हो गए थे। तुम अख्तर से निकाह कर लो, खामोशी से, अयाज अली ने मशवरा दिया। अफंदी बहुत खतरनाक इंसान है अंकल, उसे मरवा देगा। वो खौफ ज़दा हुई। और मैं उसके अलावा किसी और के मुतालिक सोच भी नहीं सकती। मिलवाओ हमसे, देखते हैं तुम्हारी काबिल है भी कि नहीं। वो जिम्मेदारी से बोले तो वो सर से लेकर पैर तक सरशार हो गई। उसका तो खौफ ही दूर हो गया। वो आजकल कुछ ड्रामों की शूटिंग में मसरूफ है, उसने बताया। मगर मैं उससे कहती हूँ वो फौरन आपसे मिलने आएगा। फिर उसके बाद तुम्हारी अम्मी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, सालिया बेगम ने उसे तसल्ली दी। किसी के घर शूट था, अभी कुछ काम बाकी था। रबाह का थकन से बुरा हाल था। वो आराम की घर से दूसरी मंजिल पर एक अलग थलग कमरे में आ गई। वो इस वक्त कमरे में तन्हा थी। सभी कहीं ना कहीं मसरूफ थे। जर्द रंग की मैक्सी उसके वजूद पर बेहद सज रही थी। उसने पैर सैंडलों से आजाद किए और बेड क्राउन से टेक लगाकर नींदराज हो गई। मैक्सी पिंडलियों से खिसक गई। साफ और शफाफ पिंडलियां नुमायां हो गई। होश रुबा हुसन नीम ख्वाबीदा था। अफंदी ने अंदर झांका। उसके अंदर का शैतान बाहर निकल आया। गलत नीयत लिए उस तक पहुंचा, हल्का सा लड़खड़ाया। आहट सुनकर रबाह ने बदांखें खोली। अफंदी को बेहद नजदीक पाकर बिजली किसी तेजी से उठ खड़ी हुई। तुम बहुत खूबसूरत हो रबाह, आज जुल्म ना करना प्लीज। अफंदी, वो लर्ज उठी। हमारी शादी होने वाली है, फिर तुम्हें क्यों एतराज है? वो एकदम बढ़ा। मैं जान दे दूंगी मजीद आगे बढ़े तो। मुझसे इंतजार नहीं होता अब। वो एक कड़ियल तवाना मर्द। रबाह को अंदाजा हुआ वो उसे रोक नहीं पाएगी। उसने दूसरी राह इख्तियार की। अभी शूटिंग मुकम्मल नहीं हुई, उसके बाद देखते हैं। मैंने सबकी छुट्टी कर दी, सब चले गए, अब यहाँ कोई नहीं है। वो दहशत ज़दा हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ खिसकने लगी। देखो मैं कह रही हूँ रुक जाओ वरना। उसने उंगली उठाकर उसे तंबीह की। मरना आसान नहीं होता मेरी जान। खबासत भरी मुस्कुराहट उसके लबों पर अभी तक थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, समझे? वो घुर्राई। जान देनी ही है तो मुझे दे दो ना मेरी जान। देखो, वो अब खिड़की तक पहुंच चुकी थी। खिड़की का शीशा खिसकाना मुहाल था, मगर शुक्र था उसमें ग्रिल नहीं लगी थी। बेवकूफ़ी मत करो रबाह। वो मुसलसल आगे बढ़ रहा था। वो खौफ की आखिरी हद तक ढह चुकी थी। उसका वजूद लर्जे की जद में था। या अल्लाह मदद कर। उसने पूरी कुव्वत से उसे धक्का दिया और लंबा चौड़ा मर्द बस एकदम ही लड़खड़ाया था। उसने बिजली किसी तेजी से शीशा खिसकाया। रुकें, कोई पीछे से पुकारा। वो कैमरा मैन था जो अपना मोबाइल लेने कमरे में आया था और सारी सूरत हाल भांप चुका था। मगर रबाह उसकी आवाज नहीं सुन सकी और उसी लम्हे एक जोरदार चीख के साथ उसने खुद को दूसरी मंजिल की खिड़की से गिरा दिया। कैमरामैन चीखता हुआ खिड़की तक पहुंचा। इतनी देर में वो छज्जे पर गिरी और फिर फर्श, वहां से भी लुढ़क कर जमीन पर जा गिरी। कैमरामैन ने नीचे झांका। वो खून में लथपथ बेसुध नजर आई। लानत है साहब आप पर। कैमरामैन सोफे पर गिरे आफंदी को कहकर तेजी से सीढ़ियां उतरता वहां पहुंचा। इतनी देर में कुछ लोग जमा हो चुके थे। किसी ने एम्बुलेंस भी मंगवा ली थी। ये खबर मीडिया तक जा पहुंची और फिर बिजली किसी तेजी से फैल गई। मशहूर मॉडल रबाह ने इज्जत बचाने की खातिर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वो मौतो जीस्त की कशमकश में मुब्तला अस्पताल में दाखिल हैं। हाय, सुल्ताना ने कलेजा पकड़ लिया। बेगम साहिबा, मेरी बच्ची। वो बुरी तरह रो पड़ी। वो हैरत ज़दा थी। तुमने कभी बताया नहीं? बेगम साहिबा ने फौरन अपने ड्राइवर को बुलाया। ड्राइवर सुल्ताना को मकामी अस्पताल छोड़ने चला गया। अख्तर अस्पताल के कॉरिडोर में बेकरारी से टहल रहा था। अयाज अली, सालिया बेगम और कैमरा मैन भी मौजूद थे। अफंदी रातों रात रूपोश हो गया। अरे मैं बचा लेता बीबी को, पर मेरी सुनी ही नहीं। वो बाकायदा रो रहा था। अफंदी को कहाँ ढूंढूं? अख्तर बेचैन था। रबाह, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। सुल्ताना बिलकती हुई कॉरिडोर में दाखिल हुई। खातून आप कौन हैं? साला बेगम ने तड़प तड़प कर रोती सुल्ताना से पूछा। मैं सुल्ताना, रबाह की माँ। उसके अल्फाज हिचकियों में कहीं गुम हो गए थे। अख्तर चंद कदम के फासले पर था। सुनते ही लपक कर उनके पास आया और उन्हें तसल्ली दी। अंदर आईसीयू में डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ थे। कई खून की बोतलें उसे लगीं। टांग की हड्डी में फ्रैक्चर था। बाजू की हड्डी भी मुड़ गई थी। आखिरकार उसने आंखें खोल दी। मेरी माँ। होश में आते ही उसने पहला सवाल किया। रबाह, ये देखो तुम्हारी अम्मी।
अश्तर ने सुल्ताना का हाथ पकड़कर रबाह के करीब किया। अम्मी। सुल्ताना को देखकर वो फिर होशो हवास खोने लगी थी। यही कैफियत सुल्ताना की भी थी, मगर इस मर्तबा ये खुशी का आलम था। रबाह तेजी से सेहतियाब हो रही थी। बस घुटने के पास से टूटी हड्डी तकलीफ भी दे रही थी। अभी बाजू पर भी बैंडेज थी। नकाहत भी बेहद थी, मगर माँ के मिलने पर मसरूर थी। उसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। सुल्ताना को अश्तर बेहद पसंद आया था। अयाज अली और सालिया बेगम की भी ममनून थी कि उसकी बेटी का इतना ख्याल रखा। इसे इज्जत को बचाने की खातिर तो अम्मी ने रात के अंधेरे में घर की चारदीवारी से बाहर धकेल दिया था। इसे कैसे ना बचाती। रबाह का लहजा ठोस था। कुछ दिन बाद रबाह को घर शिफ्ट कर दिया गया। अयाज अली सालिया बेगम ने एकदम अश्तर को भी जबरदस्ती यहीं रोक लिया था। तन्हाई के मारे अयाज अली और सालिया बेगम को यकदम इतने रिश्ते मिल गए, उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। इतने बेलौस थे दोनों। सालिया बेगम रबाह के कमरे में आई। उनके हाथ में एक पाउच था। बाजुओं पर गुलाबी झिलमिलाता दुपट्टा संभाला हुआ था। नीम दराज रबाह के करीब आई। उसकी पेशानी को बोसा दिया। उस वक्त सब लोग मौजूद थे। खामोश मुस्कुराहट के साथ उस कार्रवाई को देख रहे थे। उसका जरा सा सर ऊंचा करके दुपट्टा उसके सर पर डाला। पाउच से भारी कंगन निकालकर उसकी कलाइयों में डाले। मैंने रस्म कर दी है, सुल्ताना से मुखातिब हुई। अश्तर से इसकी बात पक्की हो गई है, अब आपकी बारी है। सुल्ताना निहाल हो गई। अश्तर ने मुस्कुराकर उसे देखा था। वो शर्म से सुर्ख हो गई। गुलाबी झिलमिलाते दुपट्टे में उसका नकाहत ज़दा चेहरा शर्मगी मुस्कुराहट लिए बेहद हसीन लग रहा था। सुल्ताना ने बटुए से कुछ नोट निकालकर अश्तर के हाथ पर रखे और उसकी पेशानी चूम ली। अयाज अली ने मिठाई का डब्बा निकाला जो उन्होंने कुर्सी के पीछे छुपा रखा था। उनको शुगर थी, सालिया बेगम खाने नहीं देती थी। वो मिठाई के दिल दादा घूर कर मियाँ को देखा। भाई आज कोई रोक टोक नहीं, आज मेरी बेटी की मंगनी हुई है, आज तो मैं मिठाई खाऊंगा भी खिलाऊंगा भी। कहते के साथ उन्होंने रबाह को आधा गुलाब जामुन खिलाया और बाकी आधा अश्तर के मुंह में डाल दिया। वो तिल मिलाती खड़ी रही तो संजीदा हो गई। डब्बा उनके सामने कर दिया। सालिया बेगम ने फौरन झपट लिया, मगर फिर एक गुलाब जामुन उठाकर अयाज अली के मुंह में ठोस दिया। सब एकदम हंस पड़े। रबाह और अश्तर की तो कैफियत ही अलग थी। दोनों की बेलौस मोहब्बत ने फतह पा ली थी। डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको आज का ये नावल? अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें। शुक्रिया।